کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا، کیوں انسان وہ کرتا ہے جو اسے نقصان پہنچاتا ہے؟ کیوں دل اس آگ کی طرف بڑھتا ہے جس نے پہلے جلایا ہو؟ کیوں روح اس چیز کی طلب کرتی ہے جس کے بارے میں دماغ جانتا ہے کہ زہر ہے؟ اگر یہ سوال آپ کے دل میں کبھی رہا ہے تو کہیں اور مت جائیں، کیونکہ یہ لیکچر نہیں، یہ آپ کی اپنی کہانی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نرمی سے بتانا چاہتا ہوں، یہ چینل کسی اور کی تعریف نہیں سنا رہا، یہ آپ کی اپنی تعریف ہے۔ آپ آدم کے اولاد ہیں اور یہ سفر آپ ہی کے لیے ہے، تو رکیں، سنیں اور اپنی روح کے ساتھ چلیں۔ 3 مقدس کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، اور یہ حقیقت انسانی دل کی ہے۔ بائبل کہتی ہے، تجربہ اور خواہش نے انسان کو گناہ کی طرف دھکیل دیا۔ ابتدا میں خواہش نے اطاعت پر حاوی ہو کر دنیا میں گناہ داخل کر دیا۔ تورات بتاتی ہے، یحزر ہرا، یہ انسانی دل کا وہ جھکاؤ ہے جو انسان کو لذات، طاقت اور خود پسندی کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، نفس انسان کو برائی کی طرف حکم دیتا ہے، مگر اللہ کی رحمت انسان کو بچاتی ہے۔ 3 مقدس کتابیں۔ ایک حقیقت، گناہ دل میں پیدا ہوتا ہے، پہلے ہاتھوں تک نہیں پہنچتا۔ شروع میں آدم اور حوا نہ لذات کے پیچھے بھاگے، نہ کنٹرول کے، نہ خواہش کے، وہ صرف موجودگی میں جیتے، وہ اطاعت میں جیتے، وہ بے شرمی کے بغیر جیتے۔ پھر ایک سرگوشی آئی، نہ حکم، نہ دھمکی، صرف ایک سوال، کیا اللہ نے واقعی یہ فرمایا؟ یہ سوال ہی انسانیت کی تاریخ بدل گیا، کیونکہ وسوسہ کبھی بغاوت سے شروع نہیں ہوتا، یہ شک سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ تحقیق کے لیے بنایا گیا، جانچنے، پرکھنے، سمجھنے کے لیے۔ یہ برائی نہیں، یہی انسان کو سیکھنے دیتا ہے، مگر جب سوال کا راستہ اعتماد سے جدا ہو جائے، یہ بھوک بن جاتی ہے، اور بھوک کبھی نہیں پوچھتی، کھانا زہر ہے یا نہیں۔ پہلا گناہ کھانے کا نہیں، سننے کا تھا بغیر مزاحمت کے۔ اسی لمحے انسانی روح میں ایک دراڑ پیدا ہوئی، ایک نئی آواز پیدا ہوئی، خواہش کی آواز۔ خواہش وعدہ کرتی ہے، علم کا، طاقت کا، آزادی کا، مگر خواہش قیمت چھپا لیتی ہے۔ اسی لیے انسان گناہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ گناہ حملہ نہیں کرتا، دعوت دیتا ہے۔ گناہ نرم بولتا ہے، گناہ درد کو سمجھتا ہے، گناہ تنہائی کو سمجھتا ہے، گناہ خوف کو سمجھتا ہے۔ ہر انسان میں ایک زخم ہوتا ہے، قید ہونے کا خوف، نہ دیکھے جانے کا خوف، اہمیت نہ ہونے کا خوف۔ گناہ سرگوشی کرتا ہے، تم زیادہ کے حقدار ہو، تم آزادی کے حقدار ہو، تم لذات کے حقدار ہو، اور دل سنتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے، دماغ خوشی کے لیے کیمیائی مواد خارج کرتا ہے، نہ اس لیے کہ عمل اچھا ہے، بلکہ اس لیے کہ دماغ سمجھتا ہے زندگی محفوظ ہے۔ اسی لیے گناہ ضروری لگتا ہے، آرام دہ لگتا ہے، بخشش لگتا ہے۔ قرآن میں واضح ہے، نفس ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، اس لیے پچھتاوا ہمیشہ بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں۔ جب آدم زمین پر اترے، انسانیت نے جدوجہد شروع کی، دل کے اندر جنگ، خواہش اور حکمت کے درمیان، یعنی جذبہ اور ضبط کے درمیان۔ وقت کے ساتھ خواہش نے ارتقاء اختیار کیا۔ شروع میں گناہ ذاتی تھا، پھر سماجی بنا، پھر ثقافتی۔ جیسے ہی قدیم تہذیبیں قائم ہوئیں، گناہ نے روپ بدل لیا۔ میسوپوٹیمیا میں طاقت مقدس ہو گئی، بادشاہوں نے خود کو منتخب کہا، گناہ نے اختیار کا لباس پہنا۔ مصر میں انسان موت سے ڈرتے تھے، اس نے اسے یادگاروں کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کی۔ گناہ نے امرت کا وعدہ دیا، وادی سندھ میں آرام بڑھا، آسائش کامیابی کا نشان بن گئی۔ گناہ آسانی بن گئی، مختلف علاقے، مختلف زبانیں، لیکن وہی بھوک۔ انسان بد نہیں ہوا، انسان تو محو ہوا۔ قرآن فرماتا ہے،
इंसान कमजोर पैदा हुआ। बाइबल कहती है रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। तौरात कहती है अगर ख्वाहिश को खुराक दी जाए ये बढ़ती जाती है। वसवसा इंसान पर हमला नहीं करता, ये इंतजार करता है दर्द के लिए, बोरियत के लिए, तन्हाई के लिए, और फिर बोलता है। यही वजह है कि नबी भी आजमाया गए, क्योंकि वसवसा इंसानी हालत को जानता है। गुनाह का मतलब ये नहीं कि इंसान बुरे हैं, बल्कि ये कि इंसान आराम चाहते हैं। आराम खौफ से, दर्द से, जिम्मेदारी से। गुनाह फरार का वादा देता है, मगर फरार हमेशा जंजीर में बदल जाता है। जैसे ही इंसान ज़मीन पर बिस्ता गया, शहर बने, कवायद बने, ताकत मरकूज हुई। कदीम सुमर में कानून तख्लीक हुआ तहजीब को कंट्रोल करने के लिए, मगर ताकत ने कानून को बिगाड़ दिया। गुनाह इंसाफ के रूप में आया। मिस्र में इबादत गाहें इल्म का मरकज़ बन गईं। लोगों को गुनाह मुक़द्दस रस्म के रूप में सिखाया गया। इब्तिदाई चरण में नज़म व ज़ब्त सब पर हावी था। इताअत ने ज़मीर को बदल दिया। गुनाह खामोशी बन गया, और फिर भी इंसानी दिल में याददाश्त बाकी रही। इलाही रहनुमाई की खामोश सरगोशी। क्यों इंसान वही गलतियाँ बार बार करता है? क्यों तजुर्बा दिल को महफूज नहीं रखता? क्यों दर्द रूह को नहीं सिखाता? क्योंकि गुनाह याददाश्त में नहीं रहता, गुनाह दिमाग में रहता है। इंसानी दिमाग जिंदगी को महफूज रखने के लिए बनाया गया, सच्चाई को नहीं। जब खतरा सामने आता है, दिमाग हिकमत से पहले तेज रफ्तार को चुन लेता है। यही चीज़ कदीम इंसान को दरिंदों से बचाती रही, मगर यही निज़ाम आज इंसान को वसवसे के हवाले कर देता है। जब इंसान ख्वाहिश की तरफ बढ़ता है, दिमाग खुशी के कीमियाई मादे खारिज करता है, ना इसलिए कि अमल अच्छा है, बल्कि ये समझता है जिंदगी महफूज है। उसी लिए गुनाह ज़रूरी लगता है, आरामदह लगता है, ज़रूरी लगता है। कुरान इस हालत को वाज़ेह बयान करता है। नफ्स बुराई की तरफ हुक्म देता है। बाइबल इसे यूं बयान करती है, ख्वाहिश नस्ल पैदा करती है, और नस्ल गुनाह को जन्म देती है। तौरात कहती है जो अपनी ख्वाहिश को नहीं रोकता, वो खुद का गुलाम बन जाता है। ये महज अल्फाज नहीं, ये नफ्सियात है। हर बार जब गुनाह पर अमल किया जाता है, दिमाग सीखता है, तकलीफ दूर होती है। जल्द ही गुनाह सिर्फ लज़्ज़त के लिए नहीं, फरार के लिए बन जाता है। फरार दबाव से, डर से, जिम्मेदारी से। यही है आदत की पैदाइश। आदत मोहब्बत नहीं होती, ये दर्द से बचने का खौफ होती है। यह अना दखल अंदाजी करती है, ये गुनाह की हिफाजत करती है। अना को जुर्म बुरा लगता है, इसलिए ये कहानियाँ बनाती है। सब ऐसा करते हैं, मैं मुख्तलिफ हूँ, मैं बाद में छोड़ दूँगा। बाद में वसवसे का पसंदीदा लफ्ज़ है, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता। उसी लिए इंसान वही चीज़ें बचाता है जो इसे नुकसान पहुंचाती हैं, ना इसलिए कि वो अंधा है, बल्कि क्योंकि अना खौफज़दा है। कुरान फरमाता है ख्वाहिश के पीछे ना चलो, ये तुम्हें रास्ते से भटका देगी। बाइबल कहती है जिस्म की तरफ दिमाग रखने वाला हलाकत की तरफ जाता है। तौरात कहती है ताकतवर वो है जो अपनी ख्वाहिश को काबू में रखे। मुख्तलिफ अल्फाज, मगर एक ही इंतबाह। जैसे जैसे मुआशरे बड़े हुए, वसवसा पैमाने पर बढ़ गया। कदीम यूनान में ख्वाहिश को आज़ादी कहा गया, खुद कंट्रोल का मजाक उड़ाया गया, ज़ब्त नफ्स को कमज़ोरी समझा गया, गुनाह फ़लसफ़े की शक्ल इख्तियार कर गया। रूम में आसाइश सकाफ़त बन गई, गुरूर को जश्न मनाया गया, तफरी लोगों की नशा बन गई। वसवसा हर थिएटर में, हर दावत में, हर गली में मौजूद था। रोमन ज़हन ने एक ख़तरनाक सबक सीखा, अगर लोग तफरी में मसरूफ़ हों तो सवाल नहीं करेंगे। ये सबक कभी मर नहीं गया। कदीम भारत में रूहानी इल्म मौजूद था,
मगर ख्वाहिश ने इसे मसखा कर दिया। लज़्ज़त को रोशन ख्याली के तौर पर जायज़ ठहराया गया। गुनाह मुक़द्दस ज़बान बन गया। इंसानियत तवाज़ुन खो गई। क़दीम चैन में नज़म व ज़ब्त सब पर हावी था। इताअत ने ज़मीर को बदल दिया। खामोशी बका का ज़रिया बन गई। गुनाह हर जगह छुपा हुआ था, और फिर भी इंसान के दिल में खामोश मुज़ाहमत मौजूद थी। एक याददाश्त जो हकीकत की सरगोशी करती थी, गाइडेंस की याद। मगर वसवसा ने रफ्तार और रूप इख्तियार कर लिया। जदीद दुनिया में वसवसा फौरी हो गया। आस्क्रीनस ख्वाहिश बराह रास्त पहुंचाती हैं। ना इंतज़ार, ना जिद्दोजहद। दिमाग कभी लामतनाही इनाम के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए आदत गहरी होती गई। तवज्जो कम हुई, सब्र ख़त्म हुआ। ये अखलाक़ी नाकामी नहीं, ये नफ्सियाती क़ैद है। मगर हर इंसान में खामोश मुज़ाहमत बाक़ी है, ऐसी तकलीफ़ जो लज़्ज़त दूर नहीं कर सकती। एक याददाश्त जो सरगोशी करती है। याद करो तुम कौन हो, याद करो अपना रास्ता, याद करो अपने खालिक को। यही रहमत है, ये वापसी की पुकार है, ये रोशनी है अंधेरों में। जितनी तहज़ीबी ख्वाहिश के सबब गिर गईं, जितने सल्तनतें आसाइश की वजह से टूटीं, हर रूह जो आदत में कैद हुई, ये सब एक ही सबक सिखाते हैं। राहत बग़ैर रहनुमाई के ज़ंजीर में बदल जाती है। ख्वाहिश बग़ैर काबू के तबाही की तरफ जाती है। गलतियों की आदत ग़ुलामी की तरफ ले जाती है, और फिर भी इंसान वापस आ सकता है, याद करके, मुज़ाहमत करके, चुनकर। और यहाँ आप कहानी में दाखिल होते हैं, ना बतौर नाज़िर, ना बतौर शिकार, बल्कि आदम के औलाद के तौर पर, अपना रास्ता चुनते हुए, ख्वाहिश को पहचानते हुए, भूख को समझते हुए, और अपनी रूह को नहीं खोते हुए। गुनाह कब ज़ाती रहना छोड़ देता है और दुनिया पर हुकूमत करने लगता है? ख्वाहिश कब दिल से निकलकर मुआशरे में बस जाती है? वसवसा कब निज़ाम बन जाता है? जवाब सीधा और खौफनाक है, जब इंसान ऐसे चीज़ों के काबू में आ जाता है जो वो नहीं देख सकता। जब इंसान उसूल बनाता है सिर्फ लज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब इंसान मुक़द्दस किताबों की हिदायत भूल जाता है। नबी ने इंतबाह किया, ना सिर्फ अफराद को, ना सिर्फ कौमों को, बल्कि पूरी इंसानियत को, क्योंकि इंसानी जिद्दोजहद कभी ज़ाती नहीं होती। कुरान फरमाता है, जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह उन पर छोड़ देता है, ताकि वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चलें। बाइबल कहती है, जिस्म के पीछे दिल लगाने वाला हलाकत की तरफ जाता है। तौरात कहती है, इंसानी ख्वाहिश पर काबू ना पाए, ये सिर्फ रूह को नहीं बल्कि पूरी कौम को तबाह कर देता है। मुख्तलिफ अल्फाज, मगर एक ही हकीकत। जैसे जैसे तहज़ीबी बनी, वसवसा सकाफ़ती बन गया। मौसूपुटीमा में बादशाह खुद को खुदा माना करते थे। इख्तियार वसवसे का रूप बन गया। लोग बग़ैर जाने ग़ुलाम बिन गए। मिस्र में रूहानी इदारे इल्म के मराकिज़ बिन गए। मंदिर लोगों को गुनाह सिखाने का ज़रिया बिन गए। सब कुछ मुक़द्दस के नाम पर। यूनान में फ़लसफ़ी ख्वाहिश की तारीफ़ करते थे। आज़ादी जुवाज़ बिन गई। ज़ब्त नफ्स शर्मिंदगी बिन गई। गुनाह फ़लसफ़ा बन गया। रूम में आसाइश सक़ाफ़त बिन गई। गुरूर को जश्न बनाया गया। तफरी लोगों का नशा बन गई। हर थिएटर में वसवसा, हर दावत में मौजूद, हर गली में छुपा। रोमन ज़हन ने सबक सीखा, अगर लोग तफरी में मसरूफ़ हों, तो सवाल नहीं करेंगे। ये सबक कभी मुटता नहीं। क़दीम भारत में इल्म रूहानी मौजूद था, मगर ख्वाहिश ने इसे मसख़ा कर दिया। लज़्ज़त को रोशन ख़याली के तौर पर जायज़ ठहराया गया। गुनाह मुक़द्दस ज़बान बन गया। क़दीम चैन में नज़म व ज़ब्त सब पर हावी था। इताअत ने ज़मीर को बदल दिया। खामोशी बका का ज़रिया बन गई। गुनाह हर जगह छुपा हुआ। जदीद दुनिया में वसवसा फौरी और हर जगह मौजूद है। आस्क्रीनस ख्वाहिश बराह रास्त पहुंचाती हैं। ना इंतज़ार,
ना जिद्दोजहद। दिमाग कभी लामतनाही इनाम के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए आदत गहरी हुई, तवज्जो कम हुई, सब्र ख़त्म हुआ। ये अखलाकी नाकामी नहीं, ये नफ्सियाती कैद है। लेकिन हर इंसान के अंदर खामोश मुज़ाहमत बाकी है, ऐसी तकलीफ़ जो लज़्ज़त दूर नहीं कर सकती, एक याददाश्त जो सरगोशी करती है। याद करो तुम कौन हो, याद करो अपना रास्ता, याद करो अपने खालिक को। यही रहमत है, ये वापसी की पुकार है, ये रोशनी है अंधेरों में। हर तहज़ीब जो ख्वाहिश की वजह से गिरी, हर सल्तनत जो आसाइश की वजह से टूटी, हर रूह जो आदत में कैद हुई, एक ही सबक देती है। आराम बग़ैर रहनुमाई जंजीर में बदल जाता है, ख्वाहिश बग़ैर काबू के तबाही की तरफ जाती है, गुनाह बग़ैर गौर के ग़ुलामी की तरफ ले जाता है। और फिर भी इंसान वापस आ सकता है, याद करके, मुज़ाहमत करके, चुनकर। यही आप कहानी में शामिल होते हैं, ना बतौर नाज़िर, ना बतौर शिकार, बल्कि आदम के औलाद के तौर पर, अपना रास्ता चुनते हुए, ख्वाहिश को पहचानते हुए, भूख को समझते हुए, और अपनी रूह को नहीं खोते हुए। अब अपने आप से ये सवाल करें, ये वसवसे आपके हैं या सिस्टम के? कौन सी लज़्ज़त ने दिमाग को तरबियत दी, कौन सी आसाइश ने हकीकत छुपा दी? ये कहानी सिर्फ किसी और की नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है। हर बसीरत, हर इंतिबाह, हर हकीकत आपकी मीरास है। और अगर आप इतनी देर तक सुन चुके हैं, अगर आपने गौर किया, तो आप पहले ही आगाज़ कर चुके हैं। देखना, सवाल करना, मुज़ाहमत करना। कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक वक्फ़ा है। और हर बार जब आप वापस आते हैं, हर बार जब आप इंतखाब करते हैं, हर बार जब आप तौक़ुफ़ करते हैं, आप अगला बाब लिखते हैं। तो याद रखें, ये चैनल किसी और की कहानी नहीं सुना रहा, ये आपकी अपनी कहानी है। ये सफ़र आपका है, आदम से आप तक, वसवसे से शूर तक, ख्वाहिश से इंतखाब तक। ये वक्त है, इस बसीरत को दिल में रखें, अपने रास्ते पर चलें, अक़ल से इंतखाब करें, और याद रखें, ये आपकी अपनी कहानी है, आदम से आप तक।